Hello everyone. Today we will discuss some of the miscellaneous topics that are related to reading skills, and along with that we will also talk about comprehension. And if you want to comprehend any sort of a paragraph, so you must have a uh, better understanding of that paragraph. So you must know some of the reading skills that would help you to understand that paragraph. So most of the time when we talk about reading, so our reading is for different purposes, and our purpose decides how should we read a paragraph. So there are different styles of reading for different situations. The technique you choose will depend on the purpose for reading. For example, you might be reading for enjoyment, information, or to complete a task. And if you're exploring or reviewing, you might skim a document. So if you are searching for information, you might scan for a particular word. So in this way, many people they just consider skimming and scanning uh, search techniques rather than reading strategies. So most of the time when we try to comprehend a paragraph, so that comprehension, it actually for that comprehension we actually use two particular techniques. One technique is skimming, and the second technique is scanning. Okay, so most of the time means people consider skimming and scanning search techniques rather than reading techniques, reading strategies, you can say. But still, these two techniques are important to understand a paragraph. So if you have a better understanding of that paragraph, आप उसको better way में summarize कर सकते हैं. You can also make a précis out of that paragraph. You can also answer the questions which are related to that paragraph. You even would be able to choose the right topic for that paragraph. So that is why uh, before summarizing anything or before making a précis of any paragraph, you must understand what that paragraph is. So if you know that paragraph well, if you have got the information from that paragraph properly, so you would be able to make précis of that paragraph better. So when we talk about this technique of skimming, so what is skimming? This is the basic question. So skimming is used to quickly identify the main ideas of a text. Okay, so quickly identify, that is means when you read the newspaper, you are probably not reading it word by word. Instead, you are scanning. Instead, you are means skimming the text. Okay, you can say. So skimming is done at a speed 3 to 4 times faster than normal reading. Because you just you are moving from one sentence to another. So people often skim when they have lots of material to read in a limited amount of time. So you can also use skimming when you want to see if an article may be of interest in your research or not. Like you are just uh, having a bird eye view of that paragraph, so that you are just checking whether the related information which you want that is there or not. So there are many strategies that can be used when skimming. So some people would read the first and the last paragraphs while using headings. Okay, so that is why means they just look at that paragraph and they just try to get the gist of that paragraph, what that paragraph is about. So sometimes you might read titles, subtitles, subheadings, and illustrations. So uh, sometimes you can also consider reading the first sentence of each paragraph. So this technique is very much useful when
you are seeking specific information rather than reading for comprehension. But still, uh, skimming is very important technique to understand a paragraph. So when the second technique we have for reading, that is scanning. So when you talk about scanning, so scanning is a technique you often use when you look up a word in a telephone book or dictionary. You search for keywords or ideas. Okay, so here you are not concerned with the whole information. Okay, so you are just going to keywords or key ideas. Okay, so in most cases, you know what you are looking for, so you are concentrating on finding a particular answer from that paragraph. So scanning involves moving your eyes quickly down the page, seeking specific words or phrases. Okay, so scanning is also used when you first find a resource to determine whether it will answer your question or not. Okay, so once you have scanned the document, you might go back and skim it. Okay, so you can have uh, um, sort of a perusing of that paragraph from the very beginning till the very end. So if you just find out some of the keywords, so you know the paragraph is related to you. So most of the time when we talk about a better comprehension, so you must not rely on one reading of any paragraph. So if you just rely on one reading any paragraph, so there are the chances there would be a lot of flaws in your reading. So जितनी आपकी रीडिंग कमज़ोर होगी, जितनी आपकी कॉम्प्रीहेंशन जो है वो वीक होगी, उतनी ही आपकी समरी में या उस पैराग्राफ की प्रेसिंग में क्या होंगे, इश्यूज होंगे. सो दिस इज़ वेरी मच बेटर कि आप रीडिंग को ज़्यादा वक्त दें, क्योंकि जब आप किसी भी पैराग्राफ को समराइज कर रहे होते हैं, सो यू डोंट हैव टू एक्सपेंड दैट पैराग्राफ. एक्चुअली यू हैव टू जस्ट श्रिंक दैट पैराग्राफ और कॉन्ट्रैक्ट दैट पैराग्राफ. तो वो जो श्रिंकिंग या कॉन्ट्रैक्शन है उस पैराग्राफ की, आपने उसको कम करके लिखना है, ज़्यादा करके नहीं लिखना है, आपने उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, या उसकी उसकी कोई इलस्ट्रेशन आपने नहीं देनी है, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है उस इन्फॉर्मेशन को आपने क्या करना है, कम करना है. तो दैट इज़ वाई जो हमारे पास कोई भी पैराग्राफ हो, तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मेक दिस काइंड ऑफ अ मिस्टेक, लाइक दे डू नॉट गिव दैट मच टाइम to the paragraph. जो paragraph एक time, like if you're making a précis and that paragraph is of about 300 words, so you have to write only about 100 words. So writing 100 words, it would take 5 minutes. No, means if you just talk about the writing speed, so it would just take 5 minutes. So that is why. So if you have to attempt one question that is of 15 or 20 or 25 marks, so you must give 10, at least 10 minutes or 10 to 15 minutes to the comprehension of the paragraph. So with better comprehension, you can write fast. You can give clear ideas because you know what is there into that paragraph. So that is why when we talk about comprehension, we just consider that the comprehension is more important. And if you just have a better comprehension, you can have grip over Prezi, or when you are summarizing those ideas. It's just like the if you know or if you have watched any movie. So if somebody asks you that what was in that movie, so you would tell that this movie starts from this point and it ends at this point, and these were the details in that movie. So if you know the whole story of that movie, if you have understood that movie, so it would be quite easy for you to tell about the details of that movie. And if you do not understand the, like you have watched something and you couldn't understand certain situations, तो क्या होगा, आप उसकी कहानी ठीक तरह से नहीं सुना पाएंगे. और ये प्रेसी करने का जो आर्ट है, though it is considered to be very much academic, लेकिन हम अपनी लाइफ में भी majority in majority of the cases we keep on doing presi, we keep on summarizing things, like you go to the bazaar and you just stay there for 2 3 hours, you just go from one shop to another buying one thing or another thing. But actually, when you come back from that particular place, so what happens if somebody asks you what you did in the bazaar? So
what happens, you can just narrate the whole incident which happened there in within, you can say, uh, 3, 4, 5, 10 minutes. So actually, you are making a pressy out of that. Like you are just narrating the story of one episode of a drama. So वो जो episode है वो 45 minutes की है, and you are telling that episode in 10 to 15 minutes. You are doing pressy. So most of the time, we in our life we do presses. लेकिन when it comes to our academic activity, so there we find certain sort of the difficulties कि हमसे प्रेस ही नहीं बन रही होती, और most of the students they find a lot of uh, a lot of difficulty whenever they are facing a paragraph. So उसमें there may be one reason, and that reason is that the paragraph is not properly comprehended by the student. तो वो comprehension अगर आप उस पर फोकस करेंगे, उस पैराग्राफ को आप रीडिंग उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको देंगे, तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन बेटर होगी। और उसके साथ साथ आपने वोकेबलरी को भी देखना है। वोकेबलरी समटाइम्स बहुत मुश्किल आ जाती है, तो वोकेबलरी को अंडरस्टैंड करने का कोई एक आप कह सकते हैं कि आसमानी कोई तरीका नहीं है कि एक वर्ड आपको नहीं आता तो एक्चुअली एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन नॉट जज कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, अनलेस कि आप उसको कंटेक्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो जो पैराग्राफ जो चल रहा है उस पैराग्राफ में इस वर्ड का पॉसिबल मीनिंग क्या हो सकता है। मीन्स उस कॉन्टेक्स्ट से आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी उस वर्ड की मीनिंग को। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80% यू कैन से योर जस्ट इंट्रैक्शन विद दैट पैराग्राफ, और जब कंटेक्चुअली आप उस वर्ड को देखने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली यू आर जस्ट मेकिंग अ गेस, लेकिन वो गेस जो है वो 70 to 80% ठीक ही हो जाता है, या आप एटलीस्ट आप उसके नियर जो मीनिंग्स होते हैं उन तक आप पहुंच जाते हैं। तो कंटेक्चुअली आप एक वर्ड को अंडरस्टैंड करने की जब आप कोशिश करेंगे एक प्रेसी में, तो एक एक पैराग्राफ में, तो वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप उस वर्ड को पिक आउट करके सिर्फ उस वर्ड पे फोकस करते रहेंगे इसका क्या मीनिंग है, तो इफ यू डोंट नो द मीनिंग, so certainly you won't be able to know the meaning because nobody is going to tell you the meaning of that word. So actually जो context है that is important. So उसके बाद हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं समरी और प्रेसी के अंदर, और फिर हम प्रेसी की क्वालिटीज़ को भी देखेंगे। So basically if you know how to make a pressy, so certainly you know how to summarize something. So summary और pressy basically तो related हैं, कुछ इनके अंदर a bit technical differences are there, लेकिन basically they are related. So when you talk about summary, so what is summary? A summary restates only the author's main ideas, okay, omitting all the examples and evidence used in supporting and illustrating those points. तो आपने ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू या मेन आइडियाज जो ऑथर के हैं उनको आपने देना होता है। उसमें जो डिटेल्स हैं, जो एग्जांपल्स ऑथर ने प्रेजेंट की हुई हैं, या स्पोर्टिंग आइडियाज जो बहुत सारे एक ही आइडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए जो उसने दिए हुए हैं, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। एंड द फंक्शन ऑफ अ प्रेसी इज टू represent the scope and emphasis of a relatively large amount of material in an efficient and concise form. Okay, so this is your कि आपने उसी जो फंक्शन है प्रेसी का कि आपने वो जो लार्ज अमाउंट में मटेरियल है उसको एक कंसाइज या एफिशिएंट वे में उसको क्या करना है, आपने समराइज करना है। सो इन योर ओन वर्ड्स स्टेट द थीसिस, मेन आर्गुमेंट्स इन कंक्लूजन ऑफ द ओरिजिनल। ओके, ये आपने करना है कि वो जो मेन आर्गुमेंट्स हैं उनको, या जो वो जो उस पैराग्राफ में जो आइडिया डिस्कस हो रहा है उसको, और फिर उसके साथ जो उसके मेन आर्गुमेंट्स हैं, और फिर कंक्लूजन आपने करना है। तो उस पैराग्राफ को लिखते हुए जब आप समराइज करते हैं, तो most of the students whenever they are making a summary of any paragraph or they are making precis of any paragraph, what is their way of making summary, कि वो पैराग्राफ में से कुछ लाइंस को स्किप कर देते हैं, कुछ लाइन को उठा लेते हैं, एंड दे जस्ट नॉट reproduce them, they just produce them as it is onto their एग्जामिनेशन शीट। तो वो जो आप एज इट इज़ प्रोड्यूस करते हो, एज इट इज़ प्रोड्यूस करने के कोई मार्क्स नहीं होते। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी, सो
when there is I mean after the paper when there's a guide for the examiners, the one who is checking your paper, तो उस पे एक क्लियर कट ये लिखा होता है कि अगर आपने उसको एज इट इज़ कॉपी किया उस पैराग्राफ को तो आपको 0 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। सो यही रूल आप डिफरेंट जगहों पर जहाँ पे प्रेसी और से रिलेटेड या समरी या समराइजिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप एक ही पैराग्राफ को एज इट इज उठा के लिखना है आपने, तो देर इज नो नीड टू राइट इट बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिटन ऑन टू द पेपर। तो पेपर पे पहले ही लिखा हुआ है तो आपको दोबारा से उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको दोबारा एज इट इज रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एज इट इज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पेपर पे लिखा हुआ पेपर ही अटैच कर दें साथ, तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि उस पर तो बड़ा साफ साफ लिखा होगा तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर आप तो वट इज इम्पोर्टेंट योर ओन वर्ड्स, तो दिस इज योर एबिलिटी। अगर एक पैराग्राफ आपके सामने है तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिखोगे तो दैट इज योर एबिलिटी। अगर वही वर्ड्स आपने उठाने हैं तो वेयर इज योर एबिलिटी। सो द पेपर इज देयर टू चेक योर एबिलिटी, not to mean you are not going to be awarded marks just for the sake of copying and paste. So अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आप अपने ओन पे तो शायद सेटिस्फाई हूँ कि आई हैव डन समथिंग वेरी मच बेटर, तो मैं तो प्रेस ही करके आया हूँ या मैंने उसकी समरी लिखी है और मैंने क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, लेकिन एक्चुअली आपने और कुछ भी नहीं किया, आपने कॉपी पेस्ट किया, आपने ओरिजिनल को उधर उठा के लिख दिया अपने उसके ऊपर। सो आपने अपने वर्ड्स में उसको लिखना होता है। सो चाहे हम पैराफ्रेज की बात करें या प्रेसी की बात करें और या समरी की हम बात करें, सो author's meaning and opinion have been retained। अपने ऑथर के मीनिंग या ओपिनियन को आपने एज इट इज प्रेजेंट करना है, वहां पे यू आर नॉट देयर टू जज दैट पैराग्राफ कि ये पैराग्राफ कैसा है, उसकी ओपिनियन ठीक है या नहीं है, ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग एल्स और नॉट। so you are not supposed to discuss any of your views into that précis और समराइजिंग, क्योंकि आपने तो उस आइडिया को जो ऑथर का है उसी को आपने समराइज करना है। तो वहाँ पे आपने जज नहीं बनना है, बल्कि आपने सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को देखना है और उस इंफॉर्मेशन को कंसाइज वे में आपने प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आपने उसके ऑथर के, और दूसरा क्या होता है कि समटाइम्स यू जस्ट टेक दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस जो उसकी प्रॉपर मीनिंग ही कन्वे नहीं कर रहा है, और अगर उसकी प्रॉपर मीनिंग नहीं कन्वे हो रही है इट मीन्स कि आपने ऑथर के आइडिया को बदल दिया है। सो दैट इज अगेन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ मेकिंग प्रेसी। ओके, so most of the time when we talk about in the case of summary, examples and illustrative elements of the passage are omitted। paraphrasing में आमतौर पे ऐसा नहीं होता, वो आप एग्जांपल्स को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, वो कि आप वर्ड्स अपने यूज कर रहे होते हैं, लेकिन समरी में आपने उन चीज़ों को ओमिट करना होता है। And then if we talk about précis, so précis is also a type of summarizing, but it insists on exact reproduction of the logic, organization and emphasis of the original text। So अब इसमें जो है वो आपका जो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसी में वो समरी से ज़्यादा हो जाती है। उसमें क्या है कि आपने एक तो ये है कि एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन करनी है उसी लॉजिक की, ओके, और उसी तरह से आपने उसको ऑर्गेनाइज भी करना है जो ओरिजिनल टेक्स्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या है नज़र आती है। तो लेकिन जब आप किसी भी पैराग्राफ की प्रेसी करें तो उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये ना लगे कि आपने डिफरेंट आइडियाज़ को उठाया है और उनको वायलेंटली जो है वो क्या कर दिया है, जोट डाउन कर दिया है, नहीं, बल्कि वो एक लॉजिकल रीजनिंग के तहत एक आइडिया से दूसरा आइडिया क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। और इसी तरह से जो हमारे पास कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, जो डिफरेंट कंजंक्शंस हैं, उनके साथ आप इस तरह से उनको जोड़ें कि वो सारा पैराग्राफ, आपका पैराग्राफ पढ़ते हुए रीडर को, एग्जामिनर को ये नहीं लगना चाहिए कि ये पैराग्राफ किसी दूसरे पैराग्राफ से लिया गया है या उसकी प्रेसी बनाई गई है, बल्कि वो अपने अंदर एक कंप्लीट होल होना चाहिए। So an effective précis, you can say, it retains the logic, development and argument of the original in much shorter form। तो original में जो argument या development या logic present की गई है उसी तरह की जो लॉजिक है आपने उसको रिटेन करना है अपनी प्रेसी के अंदर। ओके, सो यू कैन से प्रेसी इज यूजफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद लेंथी passages that demand careful attention to the logic and organization of an argument। Okay, so if
again, the point I have told you earlier. So that is that to write an effective Prezi, read the passage several times for a full understanding. Okay, so you have to note key points, and you can also underline uh, certain words which are helpful in making Prezi, and restate each paragraph in one or two sentences. Okay, अब अगर पैराग्राफ भी आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपको फर्दर जो है वो हेल्प करेंगे कि उसको इनके हो सकता है कि कृषि लाइक 500 वर्ड्स का पैराग्राफ है तो उसकी सारी डिटेल्स आपके माइंड में ना रहे, तो आप उस कृषि को पैराग्राफ वाइज उस पैराग्राफ को या उस जो है वो जो आपके पास जो है वो पैसेज है कॉम्प्रीहेंशन के लिए, उसको पैराग्राफ वाइज आप उसको क्या करते रहें, उसकी प्रेसी बनाते रहें। ओके, और हमेशा ये भी मीन वी आर नॉट दैट मच एक्सपर्ट कि पैराग्राफ 500 वर्ड्स का पढ़ें और उसके बाद उसको जब रीप्रोड्यूस करें तो हमारे पास एग्जैक्ट प्रेसी आ जाए। सो ऑलवेज मेक अ रफ ड्राफ्ट, एक रफ ड्राफ्ट बनाएं, वहाँ पर उसके ऊपर एक हेडिंग दे दें आप, दिस इज द रफ ड्राफ्ट, और रफ ड्राफ्ट में फिर आप देखें कितने वर्ड्स उसमें एक्स्ट्रा हो गए हैं, कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस जो लेंथी आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा वर्ड जिसको आप न्यू सब्सिट्यूट उसकी जगह पे वर्ड दे सकते हैं जो दो चार वर्ड की जगह पे एक ही वर्ड क्या हो जाए, यूज हो जाए। मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड सब्सिट्यूशन में क्या होता है कि एक अच्छा वर्ड आपको मिल जाता है किसी भी लंबे एक्सप्रेशन को क्या करने के लिए, कंसाइज करने के लिए, तो आप उसकी जगह पे लगा दें, तो वहाँ पे कटिंग वगैरह कुछ भी आप कर सकते हैं, यू आर अलाउड टू डू दैट। बल्कि आप ये समझें कि रफ ड्राफ्ट बनाना वो आपके पॉजिटिव इमेज या आपकी पॉजिटिविटी जो है एक उस पैराग्राफ की तरफ उसको शो कर रहा होता है, पॉजिटिविटी इन द सेंस कि यू नो हाउ टू डील विद टेक्निकल इश्यूज ऑफ द पैराग्राफ। इट मीन्स कि आपने उन सारी चीज़ों को देखा है और रफ ड्राफ्ट आपने बनाया है, रफ ड्राफ्ट में से आपने मिस्टेक्स को रिमूव किया है, रफ ड्राफ्ट में आपने इम्प्रूव करके फिर उसके बाद आप उसको फाइनल ड्राफ्ट में वन टू रफ ड्राफ्ट में बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद आप फाइनल और उसके ऊपर लिखते हैं फाइनल ड्राफ्ट, सो यू कैन समराइज दैट that passage, okay, into Prezi। And so आप अपनी प्रेसी को चेक भी करेंगे जब आप प्रेसी बना लेंगे, सो यू मस्ट चेक योर प्रेसी अगेंस्ट और चेक योर समराइजिंग अगेंस्ट द ओरिजिनल टू बी श्योर दैट इट इज एग्जैक्ट, I mean, it is showing that exact thought or idea, so it retains the order and the proportions and relationships of the original. Okay, so in this way, you can say that whenever you are talking about Prezi, so certainly you must keep in mind that whatever you are making, whatever you are doing, so you must be very much clear about that. तो टीचर के पास जाके आपको ये ना बताना पड़े एग्जामिनर के पास कि आई वांटेड टू राइट दिस, बल्कि आपके वर्ड्स में वो क्लियर होना चाहिए कि आप क्या लिखना चाह रहे थे। इसमें एक दो लाइंस मैं आपके सामने रखता हूँ, जैसे कि अगर हम इनको प्रेसी में लेके आए तो हम कौन सी चीज़ों को उसमें से निकालेंगे। लाइक here is what we say a paragraph, one two easy lines, and you can just look at them. Saima has always admired Slim. Before too long, he had got to like her as well. He was addicted to Chinese food, and she cooked him Pakistani food every week. Unfortunately, Slim's mother, Seema, regarded Saima with contempt. Okay, so in this way, when ये आपके सामने अगर एक पैसेज दिया गया हो तो इन लाइंस को आप अगर उसमें लिखें, ओके, इनको उसको शॉर्ट करके आप लिखें तो आप ओवरऑल उसको एक ही सेंटेंस में आप क्या कर सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं। और इसको अगर हम पैराग्राफ को आगे चलाएं, सो अनफॉर्चुनेटली Slim's mother, Seema, regarded Saima with contempt। यहाँ तक हमने इसको किया था। The main problem was that Saima smoked heavily wherever she went. So this really annoyed Seema, but it didn't cause Slim to lose interest। Okay, अब इस सब को अगर हम समराइज करें तो हम इसको ये कह सकते हैं लाइक
Saima admired Slim. Okay. Uh, or Saima and Slim liked each other, but his mother Seema disliked her for her heavy smoking. अब अगर आप देखें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जो 5 लाइन्स हैं वो कम होकर उसमें आ गई हैं टू लाइन्स के अंदर, ऑलमोस्ट 2 लाइन्स के अंदर. दिस अनॉयड साइमा बट नॉट स्लेम. सो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो 6 लाइन्स हैं पैराग्राफ की वो 2.5 लाइन के अंदर यहाँ पे आपकी डेमो हो जाएंगी. तो उसमें जो सारे का सारा जो पैराग्राफ है उसमें फर्दर डिटेल है, तो उन डिटेल्स को आपने रिमूव करके उस सारी की सारी बात को एक सेंटेंस में लिखने की क्या करनी है, कोशिश करनी है. ओके. सो आप इसको अब ये कह सकते हैं कि अगर इसको फर्दर आप शॉर्ट करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि साइमा एंड सलीम लाइक्ड ईच अदर बट हिज मदर सीमा disliked her for heavy smoking which troubled her. So ये भी अल्टीमेटली वो भी उसकी प्रेसिजन वो बन जाएगी. सो दैट इज व्हाट व्हेन वी टॉक अबाउट अ पैराग्राफ. सो आपने उसको क्या करना होता है, बेसिकली शॉर्ट करना होता है और उसमें एक्सप्रेशन इस तरह के यूज़ करने होते हैं कि जो थॉट है वो एक्सपेंड ना हो बल्कि कॉम्प्रेस हो और वो कॉन्ट्रैक्ट हो. अब आगे हम देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ प्रेसी क्या होते हैं. तो एसेंशियल्स ऑफ प्रेसी में यू कैन लुक एट द स्क्रीन and you will find that the first essential of Pressy, that is completeness. So the Pressy of a given paragraph should be the faithful representation of the ideas of the author in your own brief and simple language. So there is no need to just show that you have a lot of vocabulary and you can write complex sentences or other. If you can write, that is all right. And if you are unable to build or construct complex sentences, so even you can use simple language, that has the clarity. Okay, so completeness that is there. नो मटेरियल फैक्ट्स, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो ही आइडियाज रिप्रेजेंट होंगे जो ऑथर के हैं, लेकिन आपने बस उसको क्या करना है अपनी लैंग्वेज और उसके साथ उसको ब्रीफ करना है. नो मटेरियल फैक्ट्स और पॉइंट्स शुड बी ओमिटेड. जो मटेरियल फैक्ट्स जो उस पूरे पैराग्राफ को का जिस्ट है वो आप उसमें से नहीं निकाल सकते. whatever the author wants to convey should be brought out clearly, पुटिंग असाइड अनअसेंशियल डिटेल्स. अनअसेंशियल डिटेल्स क्या है कि जो एक ही आर्गुमेंट को प्रोलॉन्ग करने के लिए दी गई है या एग्जांपल्स डिफरेंट दी गई हैं. सुपरफ्लुअस फ्रेजियोलॉजी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें वर्डिंग, बड़ी बड़ी फ्रेज जो ओवरऑल उस मेन आइडिया के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं कर रही, बल्कि आप मेन आइडिया उन उस सुपरफ्लुअस फ्रेजियोलॉजी को निकाल के भी आप कर सकते हैं. एम्बिगुअस वर्बोसिटी, ये बहुत ज़्यादा verbs, some of the writers they have the habit of using this technique, although we stylistically discuss it in a different way. लेकिन वो जो verbosity है, एक ही एक्शन को शो करने के लिए राइटर ने 4 वर्ब इस्तेमाल किए हुए, तो आप उसको एक वर्ब में लेके आ सकते हैं. डिफरेंट एडवर्ब्स हैं और वो एक ही बात को कन्वे कर रहे हैं, डिफरेंट एडजेक्टिव्स हैं वो एक ही बात को कन्वे कर रहे हैं. सो यू कैन कंप्रेस देम. The resulting narrative should give a sense of completeness. और लेकिन अब ये ना हो कि उसकी चीज़ें आप रिमूव कर रही हैं और ऐसे लगे कि आपने दरमियान से सब कुछ ओमिट कर दिया है और उसमें कुछ ना ही नहीं. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपका एक पैराग्राफ ऐसे लगना चाहिए कि वो पैराग्राफ आपका ही है, किसी दूसरे ने नहीं लिखा या आपने उसको शॉर्ट नहीं किया. And the second thing, that is compactness. All the ideas reproduced from the original given passage should form a compact whole. The words and sentences should convey a sense of unity with each other. और इस यूनिटी की हमने जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने यूनिटी की बात की थी. तो यहाँ पे वो एक यूनिट नज़र आना चाहिए, कॉम्पैक्ट होल नज़र आना चाहिए, और उसका जो लिंक है वो इतना ज़बरदस्त हो कि वो पैराग्राफ की जो अपनी एक शेप है उसको वो डिस्टर्ब ना करता हो, या हमें ये ना लगे कि वो डिफरेंट आइडियाज़ एक एक सेंटेंस एक डिफरेंट आइडिया को कन्वे कर रहा है और उनका सेंटेंसेस का आपस में कोई लिंक नहीं है. ओके. सो नेक्स्ट वी हैव ब्रेविटी. सो शेक्सपियर हैज सेड ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट. गो कि शेक्सपियर ने जब ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट जिस सेंटेंस में लिखा, जिस डायलॉग में लिखा, वो डायलॉग खुद एक बहुत बड़ा डायलॉग है, लेकिन I mean, he was the master, so certainly most of the dramatists they have this particular quality because you have to produce drama
onto the stage, और एक टाइम लिमिट होती है. So Shakespeare, he was considered to be one of the greatest writers. So he has said brevity is the soul of wit, कि आप अगर जहानत की जो रूह है वो इख्तिसार है. अगर आप चीज़ें जितना मुख्तसर करके लिख सकें इतने ही आप ज़हीन हैं. So brevity is the essence of a good passage. So it is achieved by the process of shifting essential from unessential, by avoiding repetition, by omitting ornamental phrases and the like. But brevity should not be achieved at the cost of clarity. Okay, so ये होता है sometimes कि whenever you are making something very much brief, तो क्या होता है कि वो उस ब्रेविटी के चक्कर में आप उसकी क्लैरिटी को ख़त्म कर देते हैं. क्लैरिटी क्या है कि आपका सेंटेंस समझ ही नहीं आ रहा. जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ राइटर्स के जो सेंटेंस है वो बड़े एम्बिगुअस होते हैं और वो इतना टर्स किस्म का स्टाइल होता है. जैसे कि हम फ्रांसिस बेकन के बारे में कहते हैं, उसका स्टाइल जो है इतना टर्स है कि उसमें समटाइम्स जो है वो आइडिया वो क्लियर नहीं हो रहे होते. तो आपने जब भी प्रेसी ब्रीफ करना है आपने, लेकिन ब्रीफ इस तरह से आपने नहीं करना कि जो उसकी क्लैरिटी है, जो आइडिया वही ठीक तरह से कन्वे ना हो रहा हो. तो brevity should be there, but not at the cost of clarity. All the essential ideas of author should be given clearly, but briefly and concisely. Okay, so there should only be economy of words, but not of ideas. ये वर्ड्स को आपने कम रखने की कोशिश करनी है, आइडियाज आपके उसी तरह से रहने चाहिए, वो क्लियर भी रहने चाहिए. और ये ना हो कि आपने एक पैराग्राफ की प्रेसी की और उसमें से 4 मेन आइडियाज थे और आपने 2 लिखे और आपने कहा कि प्रेसी हो कि 3 आइडियाज को आपने मिस कर दिया. ओके, सो नेक्स्ट आ रहा है क्लैरिटी. So it is absolutely essential that one should impart clarity to what one writes. So sometimes when you are checking papers or checking tests of the students, so students they say, sir, we want to write this one, so this is the meaning of the sentence. अगर आपको टीचर को या एग्जामिनर को अपने सेंटेंस के मीनिंग समझाने के लिए जाना पड़ता है, या आपको ये लगता है कि मैं ये कहना चाह रहा था, तो इट मीन्स कि आपने उन वर्ड्स में ये नहीं शो किया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. इट मीन्स कि आपके वर्ड्स क्लियर नहीं है. तो क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपका अगर आइडिया दूसरे तक कन्वे ही नहीं हुआ तो आपकी प्रेसी का जो बेसिक एम था वो क्या हो गया, वो मिस हो गया. तो आपने क्लैरिटी जो है वो शो करनी है ताकि आपको किसी को बताना ना पड़े कि मैं ये लिखना चाह रहा था या चाह रही थी, बल्कि आप वो पढ़ने वाला खुद ही अंडरस्टैंड कर जाए. आपका सेंटेंस इतना क्लियर होना चाहिए कि आप ये लिखना चाह रहे हैं. सो इट इज़ पर्टिकुलरली so in the case of pressy writing, otherwise the very purpose of pressy writing would be defeated. Okay, so this is what he says. तो अगर आप क्लैरिटी खत्म हो जाती है, आपका आइडिया ही नहीं कन्वे होता, आपने ब्रीफ अच्छा किया हुआ है, 1/3 वर्ड्स आपने लिखे हुए हैं, सो दैट इज समथिंग यू आर फुलफिलिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हुए अगर आप आइडिया क्लियर ही नहीं है, आपने 300 में से एग्जैक्ट 100 वर्ड्स की आपने प्रेसी बनाई है, तो आपने कहा कि आई हैव डन ग्रेट, तो माय वर्ड्स वर एक्यूरेटली 100 वर्ड्स. तो लेकिन अगर उसमें क्लैरिटी नहीं है तो आपके प्रेसी का जो बेसिक पर्पस है वही खत्म हो जाता है. तो इन डे टू डे लाइफ a pressy or a short concise gist is generally written for a person who has not the time or occasion to go through the original. Okay, so आमतौर पे डे टू डे लाइफ में भी प्रेसी होती है, कंसाइज हम जो है वो चीज़ों को करते हैं. और इसमें जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर को रोज़ाना सपोज 40 मेल्स या 100 मेल्स या 200 मेल्स जाती हैं, तो प्राइम मिनिस्टर डजंट हैव टाइम टू go through all these emails. So if he is unable to just go through all those emails, so वो जो personal secretary है, he would just present those things in a very concise way. कि हो सकता है कि 10 ईमेल्स हों, उनमें सब में एक ही मसला डिस्कस किया गया हो, तो उन 10 ईमेल्स को पढ़ने से बेहतर है कि आप उन सब का एक लिस्ट बना के वहाँ पे क्या कर दें, प्रेजेंट कर दें. So therefore the pressy should be clear, unambiguous and brief presentation of all the essential ideas and main points of the original passage. To achieve that, one must himself clearly comprehend the main ideas. ये पहले मैंने आपके सामने बात कर दी कि comprehension, that is very much important, which the author wants to convey, and those should be faithfully passed on to the reader by the pressy writer in his own simple, clear but brief language. Okay. So the next quality, that is coherence. So coherence means attachment of one sentence to the other. Okay, so that is the to make it a
continuous narrative, okay, thereby achieving a compact whole paragraph, okay. तो compact whole तभी होगा जब एक सेंटेंस दूसरे के साथ क्या होगा, लिंक होगा, और अगर एक सेंटेंस दूसरे के साथ लिंक नहीं है तो वो कॉम्पैक्ट होल वाला जो ड्रीम है एक प्रेसी का, वो क्या होगा, फुलफिल नहीं होगा। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा कि आपने कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करनी है, जिसमें कनेक्टिंग वर्ड्स में आप देयर फोर का यूज़ कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू का आप यूज़ कर रहे हैं, एंड का आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, however का आप यूज़ कर रहे हैं, hence, thus, ओके, इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप यूज़ कर रहे हैं ताकि आप आइडियाज़ को कनेक्ट कर सकें। तो वो जम्पल्ड या डिसजॉइंटेड जो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि एज अ होल एक इम्प्रेशन पैराग्राफ का जो है वो जाना चाहिए। ये ना लगे कि आपका एक सेंटेंस कुछ और बात कर रहा है दूसरा, और इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, ओके। So, and then there is a logical and natural sequence, okay, so this means reasonable and natural order of development of the narrative in which sentences and ideas follow one after the other in an unbroken chain, okay, so one sentence should suggest the other and so on, the process should continue till the close, okay। एक सेंटेंस दूसरे पर लेके जाए, दूसरा मीन के एक चेन इनका बिल्ट होना चाहिए, तो वो नेचुरल लगे। ये ना हो कि आप, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बात की कि आपने वायलेंटली आइडियाज को जोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि आपने उन आइडियाज को एक नेचुरल फ्लो में चलने देना है, ओके। सो द मेन थीम शुड रन थ्रू द सेंटेंसेस लाइक अ थ्रेड थ्रू द बीड्स ऑफ अ नेकलेस, ओके। सो ऐसे, जैसे कि जो मेन थीम है वो ऐसे कनेक्ट होनी चाहिए जिस तरह से जो नेकलेस के जो बीड्स हैं वो किसी धागे से जैसे जुड़े होते हैं, तो वो धागा जो है वो बेसिकली वो क्या है, वो एक नेचुरल सीक्वेंस है, ओके, जो मौजूद भी होता है और एग्जैक्टली नज़र भी नहीं आता। So thus the natural succession of sequence of sentences would impart a beautiful and logical coherent look to the exercise, an ideal which every pressy writer should aspire and endeavor to achieve, okay। So ये वो ideal है कि जिसमें coherent, logical, beautiful thing that should be there। सो प्रेसी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ये भी आपने कुछ चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें वो अपने माइंड में रखनी है। टाइटल, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रेसी और समराइजिंग समथिंग, तो आपको टाइटल आपसे क्या किया जाता है, डिमांड किया जाता है कि इसका टाइटल क्या है, टाइटल लिखें। तो वैसे तो टाइटल ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है, जैसे कि मैंने यस्टरडे का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो भी टाइटल होता है वो टाइटल पैराग्राफ उसमें जो है वो जो पैराग्राफ है उसका जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज द टॉपिक सेंटेंस और टॉपिकल सेंटेंस, तो वो उसी से ही आप टाइटल को पिक कर सकते हैं। या ओवरऑल पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप यू जस्ट थिंक अबाउट दैट व्हाट दिस पैराग्राफ इज अबाउट, सो इफ यू आर एबल टू नो व्हाट दिस पैराग्राफ इज अबाउट, इट मींस दैट यू नो द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ किस बारे में है, ये पैराग्राफ गुड सिटीजन की क्वालिटी के बारे में है, ये पैराग्राफ एजुकेशन प्रॉब्लम के बारे में है, ये पैराग्राफ सोशल आइसोलेशन के बारे में, ये पैराग्राफ सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में है, ओके। ये पैराग्राफ जो है वो वायरसेस के बारे में है कि वायरसेस फैलते किस तरह से हैं। तो एक्चुअली वो जो जिस्ट आपने ढूंढना है उस पैराग्राफ का, ये पैराग्राफ किस बारे में, उसका क्या होगा, टाइटल होगा। और यूजुअली आपने टाइटल को जो हेडिंग की फॉर्म में आपने लिखना होता है, तो कोशिश करें कि उसको पूरा एक सेंटेंस ना बनाए। सेंटेंस में आपका टॉपिक नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक छोटी फ्रेज टाइप जो है वो होना चाहिए, जैसे कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन, ओके। तो ये एक फ्रेज है, दैट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। सो अगर आपने वहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं, एक टाइटल का आपने लिख देना होता, और उसके साथ जो है वो सेकंड जो आपने जो चीज़ टेक्निकल चीज़ में रखनी है वो पर्सन, ओके। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप प्रेसी बना रहे होते हैं तो उसमें फर्स्ट पर्सन भी मेंशन हुआ होता है, जिसको आप प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आपने आमतौर पर प्रेसी को इनडायरेक्ट फॉर्म में ले जाके आपने उसको किस में लिखना होता है, थर्ड पर्सन में लिखना होता है, ही, शी, इट, दे वगैरह आपने उसमें यूज करना होता है। सो even dialogues and speeches should be reported in third person, okay। so ये भी है कि dialogues और speeches भी third person में होनी चाहिए। tense जो है वो usually we use past tense in making precise, लेकिन अगर कोई inevitable situation हो कि जहाँ पे आपको लगे कि ये जो ओरिजिनल पैसेज है ये utmost importance का है, तो you can just take that टेंस ऑफ दैट सेंटेंस। लेकिन अगर नहीं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको पास्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर्म ऑफ स्पीच अपने कौन सी यूज करनी है, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम एक पैराग्राफ में डायरेक्ट स्पीच भी यूज हो रही होती है, तो आपने डायरेक्ट स्पीच से अवॉइड करना है, प्रेसी
इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है। और यहाँ पे कोई रेयर केस है कि जहाँ पे आपको लगता है कि अगर मैंने ये ऑथर की ये लाइंस नहीं लिखी तो पैराग्राफ की जो स्पिरिट है यू वुड लूज दैट स्पिरिट। तो वहाँ पे आप कुछ ऑथर के वर्ड्स को ओरिजिनल फॉर्म में आप चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपने उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में अपने वर्ड्स में ही लेके जाना है। सो लेंथ आपको जो प्रेसी की है उसको पहले आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि आपने उसको किस तरह से लेके जाना है। तो आप एक जनरल रूल है वो यही है कि आप उस लेंथ को 1/3 में लेके जाएंगे, जो मैंने 100 और उसकी मैंने आपके सामने जो है वो बात की। ओके, तो यहाँ पे है कि गुड प्रेसी या एक समराइजिंग आपने किस तरह से जो है वो करना है। तो इसमें पहले तो आपने पैराग्राफ को, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, उसको केयरफुली आपने रीड करना है, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और सेवरल टाइम्स आपने उसको पढ़ना है उसका सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने पैराग्राफ की प्रेसी की तरफ उस वक्त तक नहीं जाना जब तक आप उस पैराग्राफ को ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, क्योंकि आप गलत अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप प्रेसी की तरफ जाएंगे तो आपकी प्रेसी भी गलत होगी और आपने वही जो 15-20 मिनट्स प्रेसी को बनाने के लिए लगाए हैं, इट मीन्स यू हैव वेस्टेड those minutes, you have wasted that time. Why you have wasted that time? Because you have made a wrong pressy. तो रॉन्ग प्रेसी के मार्क्स तो नहीं है, तो आपने अपने 20-25 मिनट्स ज़ाया कर दिए। तो आप फर्दर 5-10 मिनट्स उसमें ऐड करके उसकी कॉम्प्रीहेंशन बेटर करके आप उस अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। So second, that is mark out or underline the main theme of the given piece and its subordinate ideas and arrange them according to their relative value, importance and sequence. ये कि वो लास्ट भी हमने बात की थी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहले उसके बाद एक सीक्वेंस में आप उसको अरेंज करेंगे डिफरेंट आइडियाज़ को। एंड नाउ मेक आउट अ रफ स्केच और ड्राफ्ट। ओके, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने रफ स्केच बनाना है ओरिजिनल पैराग्राफ का, उसमें आइडियाज़ को कोहेरेंट वे में लाने की कोशिश करनी है, सिंपल लैंग्वेज। फिर वो रफ ड्राफ्ट जो है वो 1/3 ओरिजिनल पैराग्राफ का बनाने की कोशिश करें। सुपरफ्लुअस रिमार्क्स को, इलस्ट्रेशन को, एग्जांपल्स को, कोटेशन को आप उसमें से निकालने की कोशिश करें और फिर फर्दर उसको देखें कि आप उसको ब्यूटीफाई या उसको किस तरह से आप कर सकते हैं, एम्बेलिश किस तरह से कर सकते हैं, रफ ड्राफ्ट में एम्बेलिश कैसे कर सकते हैं। और पहले आपको बता चुका हूँ ये भी बात कि पर्सनल आपने कमेंट्स और वो चीज़ें आपने नहीं देनी, आपने ऑथर के साथ फेथफुल रहना है, उसके ओरिजिनल पैसेज के साथ फेथफुल रहना है और जो वो कन्वे करना चाह रहा है आपने उसी को कन्वे करना है। और like he has written here, give your attempted pressy a simple, concise and well connected form so that the reader may understand it easily. And then pressy should be in indirect form, third form, past tense. Okay, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई नेसेसरी एक्सप्रेशन को आपने नहीं देखना। ओके, और ओपनिंग सेंटेंस जो है वो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो ओपनिंग सेंटेंस आपका वैसे ही होना चाहिए जैसे कि कल आपको पैराग्राफ राइटिंग में मैंने आपको बताया कि ओपनिंग सेंटेंस आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आप केयरफुली उसको लिखेंगे, क्योंकि वो आपका टॉपिक सेंटेंस है, वो आपके उस प्रेसी के पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। सो think about it much and after that you should write that paragraph, that sentence. And so यहाँ पर when you are required to write a précis of more than one paragraph, apply all the rules to each paragraph. Okay, आप ये समझे कि हर एक पैराग्राफ की प्रेसी अलग-अलग से बना रहे हैं। ओके, इस तरह से आप वो सारे के सारे प्रेसी के रूल एक पैराग्राफ पे अप्लाई कर दें। ओके, सो यहाँ पर डू नॉट बोरो हाई फ्लोन एम्बिगुअस वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। ओके, वहाँ पे अगर मुश्किल चीज़ लिखी हुई है और वो सुपरफ्लुअस है, ओके, सो दैट इज व्हाट ही सेज, दिस इज सुसाइडल फॉर अ गुड प्रेसी। कि अगर आप ओरिजिनल पैसेज के वर्ड्स आप एज इट इज पिक करते हैं और आप अपना एक्सप्रेशन बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो सो अल्टीमेटली that would just contaminate, you can say, or that would make your pressy flawed. So that is why आपने उस उधर से अपनी चीज़ों को पिक नहीं करना। That is why he says use your own simple, concise, idiomatic English। और आगे अवॉइड स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ओके, अगर आपने प्रेसी ठीक भी कर ली, आइडिया आपने ठीक भी पिक कर ली, लेकिन अगर आपने स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हुई है, सो ही वुड कीप ऑन सर्कलिंग दोज मिस्टेक्स। तो आपकी जो प्रेसी की जो स्पिरिट है वो खत्म हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि उसने आपकी प्रेसी चेक ही नहीं की, वो तो ग्रामर या पंक्चुएशन तक ही रह गया एग्जामिनर। तो ग्रामर, पंक्चुएशन और ये स्पेलिंग, दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर आपको इन पे
कमांड है तो देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट. तो अगर आपको इन पे कमांड नहीं है तो देयर वुड बी द प्रॉब्लम फॉर यू. व्हाई? बिकॉज वो तो स्पेलिंग या ग्रामर पे ही राइटर जो है वो रुका रहेगा. तो एक्चुअली आपको राइटर, सॉरी आई एम सेइंग राइटर, दैट इज एग्जामिनर. सो आपकी तो प्रेसी को तो चेक किया, आपके आइडिया तो बाद में आता है ना, पहले तो आपकी लैंग्वेज आती है कि हाउ यू हैव कन्वेड दैट पर्टिकुलर आइडिया. अगर आपकी लैंग्वेज ही रॉन्ग है तो फिर आइडिया तो उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है. सो now revise your draft keeping in view all the hints and requirements of a good pressing. Uh, uh, Good pressing given above, so means you must keep on revising. Okay, so uh, never forget to give your pressy a suitable title. That is a must. Okay, so suitable title, that is important, that is a uh, topical sentence. So these were some of the things I wanted to share with you related to Prezi. So I hope you would like this lecture, and if you have any query or any question, you can just ask that question in the comment section. So I will try to answer those questions or answer those queries. Okay, thank you very much.